بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ٹوپی اور امامہ۔ سوال: بعض حضرات ٹوپی اوڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ امامہ ہے یا امامہ؟ امامہ امامہ لغت میں دیکھنا این کے کسرے کے ساتھ ہے یا ان کے فتح کے ساتھ؟ امامہ ہوگا۔ چل سوال: بعض حضرات ٹوپی اوڑھنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں ٹوپی اور امامہ دونوں ہونے چاہیے ورنہ کوئی بھی نہیں۔ جواب: ابو داؤد کی روایت میں ہے بلکہ ترمذی شریف میں بھی ہے، فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القنائس، ہمارے اور مشرکین کی ہیئت کے درمیان فرق ٹوپیوں پر امامہ باندھنا ہے۔ کسرہ نہیں، کسرہ نہیں۔ آپ نے کہا اس کے بعد ابھی آپ کی گرمی میں فتح پڑا۔ یہ جو کسرہ ہے یا فتح ہے حدیث میں کیا ہے؟ فتح ہے، فتح ہے، کسرہ ہے۔ فتح۔ کسرہ کیوں پڑا تھا؟ چل کلانس کے لفظ سے نفس ٹوپی کا ثبوت تو ہو گیا، لیکن اس روایت میں آج محدثین بہت سارے لوگوں کو یہ آسان تو ہے، میرے خیال سے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں، سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پھر بھی اگر نہ سمجھنا ہے تو پوچھ لیا کرو کہ کیا مطلب ہے، پھر سمجھا دوں گا۔ اصل یہ کہ ٹوپی اکیلے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، دوسرا یہ ہے کہ ٹوپی کے اوپر امامہ ہونا چاہیے یا نہیں، بغیر امامہ کے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ بہت ساری بدعتی مسجد ہوتی ہے جس میں کیا ہے امام کو امامہ باندھنا فرض لازم ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں چنار میں بھی تھا، سمجھنا ہے، اب نکل گیا ہے لیکن تھا پہلے بھی۔ بہرحال تو یہ بدعتیوں کی یہ ہے کہ امام کو تو امامہ باندھنا ہی چاہیے، تو اس وجہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہوگا تو مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ امامہ اور ٹوپی، یا تیسرا یہ بتایا کہ امامہ بھی نہ ہو ٹوپی بھی نہ ہو، کھلے سر جیسے آج کل پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ جی کلانس کے لفظ سے نفس ٹوپی کا ثبوت تو ہو گیا، لیکن اس روایت میں محدثین کا کلام ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اسنادہ لیس بقائم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ البتہ شمائل ترمذی کی شرح جمع الوسائل میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقے ثابت ہے۔ نمبر 1، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ٹوپی پہن کر بھی نماز پڑھی ہے، اور کیا ہے امامہ، ٹوپی کے اوپر امامہ بھی باندھا ہوا تھا اور امامہ کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، اور تیسرا صرف امامہ۔ نمبر 1 صرف ٹوپی، نمبر 2 صرف امامے سے نماز پڑھنا، نمبر 3 ٹوپی پر امامہ باندھ کر نماز پڑھنا۔ ان تینوں طریقوں سے ثابت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ ٹوپی کے اوپر امامہ ہو، اس طریقے پر نماز پڑھنا مستحب ہے، لیکن بغیر ٹوپی کے امامہ اور بغیر امامے کی ٹوپی یہ بھی درست ہے۔ البتہ ایسا کرنا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اس کی کوئی اہمیت مقصود نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس لیے نماز میں ٹوپی بھی ہونی چاہیے اور امامہ بھی ہونا چاہیے۔ جی مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس باب میں نے بہت تلاش کیا مگر کہیں نہیں ملا۔ البتہ ایک چیز اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ملی، وہ یہ کہ جو شخص امامے کا اتنا مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ نماز میں ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے کہ جن کپڑوں کو پہن کر بڑی مجلسوں میں، بڑے جگہوں میں تم جا سکتے ہو اور بڑی جگہوں میں جانے میں شرم محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ اگر بڑی جگہ میں جانے میں تم شرم محسوس کرتے ہو کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ جب دوسرے تمہارے مجلس سے جلسے ہیں، تمہارا مقام ہے یا تمہاری بیٹھکیں ہیں، اس بیٹھکوں میں تم کو یہ کپڑے پہن کر جانا شرم آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تو بدرجہ والا شرم آنی چاہیے۔ اس لیے بعض حضرات جو لنگی صرف گھروں میں پہنتے ہیں، لنگی پہن کر باہر نہیں نکلتے، ان کو شرم آتی ہے، سمجھنا ہے۔ ایسا آدمی اگر لنگی پہن کر نماز پڑھے گا تو مکروہ ہوگی، سمجھنا گیا۔ اسی طریقے سے
अगर कोई आदमी अलीगढ़ी है और वो बगैर शेरवानी के बाहर नहीं जाता, बगैर शेरवानी के मजलिसों में नहीं जाता, तो ऐसे आदमी को बगैर शेरवानी के भी नमाज पढ़ेगा तो वो मकरूह होगी। मसला समझ में आ गया? चलो। अलबत्ता एक चीज अपने वालिद साहब की तहरीर मिली, वो ये कि जो शख्स अमामे का इतना एहतमाम करता हो, इसी तरीके से जो आदमी अमामे का इतना एहतमाम करता हो कि बगैर अमामा के घर से बाहर, बगैर अमामा के रूम से बाहर नहीं जाता, वो हमेशा अमामा उसके सर पर होता ही है, तो ऐसा आदमी बगैर अमामा के भी नमाज पढ़ेगा तो उस सूरत में उसकी नमाज मकरूह होगी। समझ में आया नहीं जी? अहबाब की मजलिस में भी बगैर अमामे के न जाता हो, किसी मुअज़्ज़ज़ मजलिस में भी बगैर अमामे न बैठता हो, ऐसे शख्स को बगैर अमामे के नमाज पढ़ना और पढ़ाना दोनों मकरूह है। और यहाँ तो इमाम को तो अमामा बांधना चाहिए, चाहे पब्लिक के सर पर, किसी के सर पर भी अमामा ना हो तो कोई हरज की बात नहीं, इमाम का तो होना चाहिए। रांदेर में भी था पहले, अब खत्म हो गया जी। हमारे एक अजीज थे मौलाना फैजुल हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने उसूल शाशी पर भी हाशिया लिखा है। मुफ्ती मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फैजुल हसन गंगोई नामी एक आदमी थे, इन्होंने उसूल फिक़ह के ऊपर हाशिए वगैरह भी लिखे हैं। वो नमाज पढ़ाते थे चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, और गंगो की और सहारनपुर की गर्मी बहुत होती है मई में, समझना पढ़ते थे। उस वक्त हमने तय किया था कि कभी किसी मई में सहारनपुर नहीं आएंगे, ये कपड़े भी भारी लगते हैं, इतनी गर्मी लगती है, बहुत सख्त गर्मी, और सर्दियों में सर्दी भी बहुत सख्त होती है जी। वो रमजान के महीने में बावजूद के सख्त गर्मी का मौसम होता, कपड़े सारे पसीने में शराबोर हो जाते, लेकिन शेरवानी में नमाज पढ़ा करते थे। बगैर शेरवानी के नमाज नहीं पढ़ते थे। उनको बहुत कहा गया कि बस शेरवानी को निकाल दो, बगैर शेरवानी के पढ़ो। तो ये कहते हैं कि मैं किसी मजलिस में शेरवानी के बगैर नहीं जाता। जब किसी मजलिस में शेरवानी के बगैर नहीं जाता तो अल्लाह के दरबार में कैसे बगैर शेरवानी के जाऊं? वो तो खिलाफ है। इसलिए गर्मी लगे तो लगे, लेकिन शेरवानी पहन, जिनकी आदत होती है जी। लोगों ने कहा भी कि आप इतनी मशक्कत बर्दाश्त करते हैं, इसकी जरूरत क्या है, बगैर शेरवानी के नमाज पढ़ा दीजिए। तो फरमाया, मैं दोस्तों से बगैर शेरवानी के नहीं मिलता, तो अल्लाह के सामने बगैर शेरवानी के कैसे खड़ा होऊंगा। सवाल, अमामे की लंबाई कितनी मनकूल है? जवाब, ये भी जमउल वसाइल में है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो अमामे थे, एक सुगरा एक कुबरा, एक 6 ज़िरा का था और एक 12 ज़िरा का था। क्या रुमाल से अमामे की सुन्नत अदा हो जाएगी? ये रुमाल बांध लेते हैं वो जी। सवाल, आमतौर पर लोग रुमाल ओढ़ लेते हैं, क्या उससे अमामे की सुन्नत अदा हो जाएगी? जवाब, इससे ओढ़ने की सुन्नत अदा हो जाती है। इज्तिमाई दुआ, यानी अमामे की जो सुन्नत है वो अमामे से ही अदा होती है। ये रुमाल बांध लो, उससे अमामा की सुन्नत अदा नहीं होगी। 6 ज़िरा का कम से कम होना चाहिए जी। इज्तिमाई दुआ। सवाल, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ साबित है? जवाब, इमाम ने सलाम फेर दिया, जैसा भी असर के बाद सलाम फेरा, तस्बीह पढ़ी, इमाम ने दुआ के लिए हाथ उठाया और हम सब ने हाथ उठा लिए, तो ये इज्तिमाई दुआ है। तो ये इज्तिमाई दुआ साबित है या साबित नहीं है, क्या ख्याल है? मालूम नहीं है तो मालूम ना कह दो, ना कहने में क्या जाता है, लेकिन ना कहे तो नाक कट जाती है जी। जवाब, हदीस में हर नमाज के बाद दुआ का मकबूल होना वारिद हुआ है। फर्ज नमाज पढ़ी, हर एक चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो, तो हर कोई दुआ करने लगता है, ये गैर इख्तियारी इज्तिमा हो जाता है। यानी गैर इख्तियारी तौर पर हर एक आदमी दुआ चाहता है कि मेरी नमाज के बाद दुआ, और नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। और हर एक आदमी ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो। इस वजह से सलाम फेरा, क्या सलाम फेरते के साथ ही रब्बना ज़लमना या कोई भी दुआ वो शुरू कर देता है, एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, तो गोया कि यूं इज्तिमा हो गया। बाकी शरई एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कराई हो और सारों ने आमीन कही हो, ये हदीस में नहीं मिलता।
समझना है नहीं। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की है और सहाबा किराम भी दुआ करते थे। और उसके लिए ये है कि जो फर्ज नमाज के बाद जो दुआ करेंगे वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि बस इमाम जो कहे उसी पर हम आमीन कहते रहते हैं। समझना नहीं, ये सुन्नत से साबित नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कराते थे और हम तो, हाँ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ करते थे और तुम तो उलमाए किराम हो, तुम तो अपनी दुआएं भी जानते हो। हम ये इसमें कह सकते हैं कि क्योंकि ये जहालत का जमाना है और मुक्तदी या जाहिल होते हैं, बेचारे को दुआ करना भी नहीं आती, इस वजह से इमाम दुआ करा दे उसके साथ वो आमीन कह दे, ये गुंजाइश है, लेकिन सुन्नत की अदायगी के लिए काफी नहीं है। जी, हदीस में है कि जो शख्स फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ करता है तो अल्लाह ताला को हया मालूम होती है कि उसके हाथों को खाली वापस करे, और हर शख्स ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो। हाथ उठाकर दुआ करेगा तो कुदरती तौर पर इज्तिमा होगा, यानी तुम भी हाथ उठाकर दुआ करोगे, तुम भी हाथ उठाकर दुआ करोगे, तुम भी हाथ उठाकर दुआ करोगे, तो पूरी मस्जिद में सब साथ मिलकर दुआ करने का तरीका हो जाएगा। किसी ने कहा नहीं, लेकिन हर एक दुआ कर रहा है तो सब कर रहे हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एहतमाम नहीं कराया। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले पर मुस्तकिल रिसाला लिखा है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये इज्तिमाइयत दुरुस्त है। हर नमाज के बाद पढ़ने की दुआ अमलुल यौम वल लैला में है, जो हाफिज इब्न सिन्नी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है। इसमें यह हदीस भी मौजूद है और दुआ के अल्फाज भी। मुसाफहा करते हुए हाथ हिलाना, मुसाफहा करते हुए हाथ को जो हिलाते हैं इस तरफ इशारा है कि गुनाह जड़ रहे हैं, इसीलिए यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम भी पढ़ते हैं, अगरचे हदीस शरीफ में इसके पढ़ने का सबूत नहीं। मुआनका के वक्त की दुआ। सवाल, मुआनका के वक्त मुआनका का असल तो माना है उनुक से उनुक को मिलाना, गर्दन से गर्दन को मिलाना, लेकिन हम जो मुआनका करते हैं उसको मुआनका नहीं कहते, उसको मुसाबिरा कहते हैं, सीने से सीना मिलाते हैं। आ जाओ जी। जवाब, मेरे इल्म में नहीं। खैबर के फतह के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज वो आइज़ा आए जो हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे, हजरत जुबैर, हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर से मुआनका किया और ये फरमाया कि मैं नहीं जानता कि जाफर के आने की मसरत ज्यादा है या खैबर के फतह की मसरत ज्यादा है। बारीक कपड़ा पहनना। सवाल, क्या पतला या बारीक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए? मन रक्का सौबुहु रक्का दीनुहु, इसकी असल क्या है? यानी जिस आदमी के कपड़े पतले होंगे उसका दीन भी पतला होगा। ये कोई हदीस है या नहीं? हजरत मुफ्ती साहब से पूछा गया, हदीस नहीं है जी। जवाब, ये मेरे इल्म में नहीं, लेकिन बारीक कपड़ा पहनना जिससे बदन झलकता हो ऐसा वाकई नहीं पहनना चाहिए। रुब्बा कासियातिन आरियातिन, कितनी औरतें ऐसी है जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी है। इसका मतलब ये है कि ऐसा बारीक कपड़ा पहनती है जिससे बदन नजर आता है। सवाल, ये तो औरत के लिए है। जवाब, कोई हिस्सा मर्द के लिए भी ऐसा है जिसका छुपाना, बदन के भी कुछ हिस्सा ऐसा है कि जिसको छुपाना जरूरी है। अब अगर वहां पर वो मलमल का कुर्ता पहनने का तो दिखाई देगा, तो फिर मना होगा कि नहीं जी। अगर उस पर वो बारीक कपड़ा पहना वो भी इसी में दाखिल है, वरना तो एक लुंगी से भी काम चल सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत लुंगी बांधते और चादर ओढ़ते, हत्ता ज़हरा बियाज़ इब्तैही आया है कि बगल मुबारक की सफेदी जाहिर होती थी। और ये उसी वक्त होता है जब चादर उड़ी हुई हो, कुर्ता पहनना हो तो कितना ही हाथ उठाओ बगल नहीं खुलती। मालूम हुआ कुर्ता नहीं था, सिर्फ चादर थी। लुकमा निगलने के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, लुकमा खाने से पहले बिस्मिल्लाह, लुकमा खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और जब लुकमा निगल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। हदीस का ये हुक्म है, या खाते वक्त पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया वो सबके लिए काफी हो जाएगा, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए काफी हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया है जी। लुकमा खाने से पहले बिस्मिल्लाह, निगलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी क्या असल है? जवाब, खाने के बाद हदीस से ये साबित है इसको पढ़ना चाहिए।
الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اللہم اجعلہ ہنیئا مریئا. اس وقت بھی الحمدللہ ہے جب وہ لقمہ نکلے یعنی قضاء حاجت سے فارغ ہو. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاعداء وعافانی. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے حق میں مقصر ہے. ارشاد فرمایا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے فتح الباری کی شرح لکھی ہے، جنہوں نے دعا کی تھی کہ میرا علامہ ذہبی جیسا حافظہ ہو جائے، کہتے ہیں کہ احناف کے سلسلے میں ہے خود شافی، اس لیے شافیوں کی جو دلیل ہوگی وہ حدیث میں جہاں آئے گی بڑے زور سے بیان کریں گے، لیکن احناف کی جو دلیل آئے گی تو وہاں احناف کی جو مضبوط دلیل ہے وہ بیان نہیں کرتے، بلکہ کمزور دلیل ہو وہ بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی تردید ہو سکے. اب ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، کتاب دیکھتے ہی نہیں، لیکن حضرت مولانا انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب دیکھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہاں حافظ ابن حجر نے احناف کی جو دلیل ذکر کی ہے وہ دلیل کمزور ذکر کی ہے، ہماری جو دوسری دلیلیں بھی ہیں. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری شافعی المسلک ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کو اگرچہ حافظ الدنیا کہتے یعنی حدیث کے اعتبار سے واقعی حدیث کے وہ حافظ ہیں، لیکن مگر تھے ان سے اپنا ناراض. اپنا ہے، غیر ہے. فرمایا کرتے تھے کہ ابن حجر حنفیہ کے حق میں مقصر ہیں، ان کے قصر کرتے ہیں، قصر کرنے والے ہیں، کوتاہی کرنے والے ہیں. ان کے علم میں حنفیہ کے مسلک کی قوی دلیل ہوتی ہے مگر اس کو ذکر نہیں کرتے، ایسی کمزور دلیل ذکر کرتے ہیں جس کا رد کر سکے. نیز فرماتے تھے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی امام طحاوی کے رد کو فرض عین سمجھتے ہیں، چنانچہ جگہ جگہ امام طحاوی اصل میں پہلے شافعی تھے، پھر انہوں نے چھوڑ کر حنفی مذہب کو اختیار کیا اور حنفیوں کی دلیلیں ذکر کی. جی چنانچہ جگہ جگہ طحاوی حنفی کہہ کر ان پر رد کیا ہے، اور میں علامہ حافظ ابن حجر کے جواب کو فرض عین سمجھتا ہوں. علامہ انور کشمیری فرماتے ہیں کہ حافظ نے جو ہماری دلیل ذکر کی احناف کی کمزور دلیل ہے، جہاں بھی کہا تو میں اپنی طرف سے احناف کی دلیلوں کو ذکر کرنا فرض سمجھتا ہوں تاکہ احناف کا حق ادا ہو. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں شورا تو یہی پتہ نہیں کہ حنفی کی دلیل کیا ہے، شافعی کی دلیل کیا ہے، چلتا ہے. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا 7 نفری تھی. فرمایا کہ سعودی عرب میں ایک مرتبہ مختلف ممالک سے علماء کو بلایا گیا. مجلس میں وہاں کے ایک بڑے عالم نے کہا، مجلس شورا جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا امر سونپ دیا تھا کی تعداد 6 تھی. ہندوستان کے ایک عالم مولانا عبد الحلیم صدیقی صدر مدرس مدرسہ تعلیم الدین ڈابیل نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ 7 تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رکن شورا تھے، البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرما دیا تھا کہ یہ خلیفہ نہیں بنیں گے لیکن مشورے میں شریک رہیں گے. بخاری جلد 1 صفحہ 24 میں ہے، ما اجید احق لهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم عنهم راض. یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو 6 آدمیوں میں بتایا تھا کہ ان 6 میں سے تم لوگ جس کو پسند کرو اس کو کر لینا. خلافت کا کل بتایا تھا پورا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں بنایا بلکہ لوگوں نے انتخاب کیا. حضرت عمر نے پہلے پسند کیا، یاد ہے حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے بنایا، اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ میں اگر کسی کو نہ بناؤں تو ابھی میرے پاس حق ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایسا ہی کیا ہے. میں کسی کو متعین کر کے جاؤں تو یہ بھی میرے لیے حق میں ہے کہ مجھے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ 6 آدمیوں کا نام تمہیں دیتا ہوں اور یہ 6 آدمی وہ ہے کہ جس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 آدمیوں سے خوش تھے. سمجھ نہ گیا؟ اور ظاہر بات ہے کہ اب بھی ان کے اعمال میں تو کوئی بدلاؤ آیا نہیں، اس لیے اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہی ہوں گے
اور इनमें से अगर कोई उम्मत उनका रहबर बन जाए तो बहुत अच्छा है, ये तुम्हें इंतखाब करना है। इस तरीके से उन्होंने ये बताया जी। और फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर मशवरे में शरीक होंगे। हजरत अब्दुल्ला, आजकल तो यही होता है आम मतलब खास करके यहाँ पर भी कि इमाम का बेटा इमाम, पता नहीं कहाँ से शुरू किया है तुम लोगों ने, रांदेर में ही है इमाम का बेटा इमाम। हालांकि ये विरासत इमामत में नहीं चलती, समझना है नहीं। तो इस तरीके से अमीर का बेटा अमीर, खलीफा का बेटा खलीफा, ये नहीं होना चाहिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरा बेटा यानी अब्दुल्ला इब्न उमर हालात के एतबार से, अखलाक के एतबार से, हर चीज के एतबार से बहुत ही ऊंचा दर्जा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का आप जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के कितने ताबे, लेकिन मैं बाप होने के नाते कहता हूं कि अब्दुल्ला इब्न उमर खलीफा नहीं बनेगा। नाराज तो कहते नहीं, कोई रफेल लो जी। उन आलिम साहब ने वहां तो कुछ जवाब नहीं दिया, अपनी वालिदा से जाकर जिक्र किया तो वालिदा ने कहा कि सही है, फुला किताब में है। उसका ये इन हिंदी आलिम ने टोक दिया, मेरी गलती पकड़ी। उन अरबी आलिम को इतना सदमा हुआ कि उसी में उनका इंतकाल हो गया। जाहिर बात है कि आलिम हो तो अपना इल्म पढ़ो, और वो भी अरब आदमी, और उसका भी इंडिया का, हिंदुस्तान का कोई आलिम उसकी गलती बताए तो अफसोस तो होना ही था जी। तारीफ बिदात। सवाल, हजरत बिदात की सही तारीफ क्या है? जवाब, कि इरशाद फरमाया कि जो चीज दीन में ना हो उसको दीन समझकर करना बिदात है। असल उसकी मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन है। क़ियाम मौलूद और जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होना। सवाल, हजरत मजलिस मिलाद में बरेलवी लोग क़याम करते हैं और इसी हालत में मिलाद होती है। मिलाद का माना है कि हुजूर, आप लोगों ने तो देखो जानते भी नहीं होंगे ना, मौलूद जानते हो, शरीक भी हुए हो। ये बेचारा बोल नहीं रहा है, तेरे शक्ल से मैं पहचान गया कि ये भी उसी में क्या है। खैर बहरहाल मौलूद के मुतालिक देखो, मौलूद के मुतालिक हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा करना, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की सही हदीसें बयान करना बासे सवाब है, कोई मना नहीं कर सकता। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान करने से कौन मना करता है, समझना है नहीं। लेकिन मौजूदा जमाने में जो मौलूद कही जाती है, उस मौलूद में अव्वलन तो जो सही अहादीसें हैं उसका कोई तज़किरा नहीं। और हमारे यहाँ तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो गया नहीं, लेकिन शायद अशारी पढ़े जाते हैं मौलूद में। नहीं, वो ना तो तुम पढ़ते होंगे, लेकिन वो तो किताबें जो होती है, जो मौलूद की किताबें लिखी हुई होती है, उसमें अशारी होती है, वो अशारी जोर जोर से पढ़ी जाती है, समझना है। अब वो जो अशार हैं वो सही अशार नहीं है, इसमें बहुत सारी मुबालगा के साथ सारी चीजें जिक्र की गई है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आखिर तक, मरने तक हमारे पास सही हदीसों का बड़ा ज़ख़ीरा है। जब हमारे पास सही हदीसों का बड़ा ज़ख़ीरा है तो फिर इसको, मौजू को, ज़ईफ़ को जिक्र करने की जरूरत क्या है? इस वजह से मना करते हैं। एक दूसरी वजह ये है कि जब इस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलूद की मजलिस जमा होती है तो उस वक्त वहाँ इंतजाम स्टेज सजाया जाता है, समझना है। और ये स्टेज सजाना, लाइट जलाना, ये करना, वो करना, सब, फिर उसमें मर्द औरतों का भी इख्तिलाफ होता है और भी बहुत सारी चीजें वैसी होती है। फिर इसके साथ क्या यदि खाना ना हो तो फिर मौलूदी क्या हुई? होता है कि नहीं खाना?
खाना न हो तो मौलूद क्या हुई, यानी बगैर खाने के मौलूद होते ही नहीं। हालांकि मौलूद के लिए खाना कोई शर्त नहीं है, समझना है। और ये तो खाना कहते हैं। फिर जो खास खास मौलूद पढ़ाने वाले होते हैं उनका जो हदिया होता है वो मुस्तकिलन होता है। तो इन सारी चीजों की वजह से हम लोग मौलूद को मना करते हैं। बाकी नफ्स मौलूद यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा करना वगैरह ये मना नहीं है, समझना है। और ये तो दुनिया है। और हिंदू लोग भी क्रूश अब मिल जाता है कृष्ण की पैदाइश की रात, समझ में आया नहीं, उसकी पैदाइश की रात को बराबर 12 बजे ये पूरा प्रोग्राम करते हैं। यहाँ तक के प्रोग्राम करते हैं कि बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जैसा कि वो रोता है इस तरीके से एक बच्चे को चूंटी देकर रुलाते भी है ताकि पूरा माहौल सज जाए, समझ में आया नहीं। मुसलमानों में तो ऐसा नहीं सुना कि अभी उन्होंने कभी किया हो, लेकिन क्या है इस किस्म की चीजें होती है, इस वजह से हम मना करते हैं, समझ में आ गया। अब फिर तुम देखोगे कि हजरत शाह इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलूद में जाते थे और हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह ताला अलैह मना करते थे। तो इस वजह से कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर बुजुर्ग आदमी थे। पीर बुजुर्ग आदमी हर एक की हालात को नहीं जानता, उसमें जन का चश्मा लगा हुआ होता है, इस वजह से ठीक है। और आलिम जो होते हैं उसको क्या है बड़ी चौकसाई होती है, इस वजह से ये हजरात फरमाते हैं ये सारी खराबियां है, इस खराबी की वजह से हम मना करते हैं। और ये खराबी जब उसमें है तो ये खराबी खत्म में भी होगी या नहीं वो नहीं मालूम मुझे, वो पूछ लेना। खत्म में आइसक्रीम खाते हो, कोक पीते हो, समझ में आया नहीं, उसमें भी अगर ये खराबी है तो वो भी मना होना चाहिए। इसलिए कि जिस तिलावत को तुम खाने पीने की वजह से करते हो तो उसका तो सवाब नहीं मिलता। जब उसका सवाब ही नहीं मिलता तो सारे सवाब क्या होगा, यार समझ में आ गया कि नहीं जी। जवाब, इरशाद फरमाया कि मोमिन को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फितरी मोहब्बत है। उसके ईमान का तकाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से मुतअस्सिर हो, खुसूसन जबकि वो अशआर तरन्नुम के साथ हो कि तरन्नुम के साथ पढ़ा जाएगा, बहुत बारीक आवाज से पढ़ा जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा, तब जरा जोश आएगा, समझ में आया नहीं। तो ये सब मौलूद के साथ लवाज़िमात में से है। किसी मेरे जैसे आवाज वाले को बिठा दिया जाना क्या बिहार दूसरे को लाओगे जी। खुसूसन जबकि वो अशआर तरन्नुम के साथ हो कि तरन्नुम को तरक्की के कल्ब में काफी दखल है, लेकिन इससे तरक्की के कल्ब यानी कल्ब को नरम करने में, रिकत में, तरक्की के कल्ब में काफी दखल है, लेकिन इससे ये न समझा जाए कि क़ियाम या मजलिस मीलाद सही है। अच्छा, इसके अलावा भी है बहुत सारे, जैसे ये जब पूरी होती रहेगी मौलूद, समझना, और पढ़ने के लिए शायद अदरक का भी इंतजाम किया जाता है। नहीं, अरे मौलूद पढ़ते हैं वो गए नहीं मौलूद में कभी, वहाँ वो अदरक का भी इंतजाम, जैसे कि जोर से पढ़ते हुए गला बैठ जाता है तो अदरक खा लेते हैं, ये समझेंगे ये गया होगा, मैंने देखा है। समझने ये सारा इंतजाम होता है, ये समझना जो चिल्ला कर पढ़ते हैं वो उस वक्त में, फिर ये बैठे रहे पढ़ रहे हैं, और जब आखिर आ गया या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम, ऐसे सब खड़े हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आई, भाई कौन सी वही आई, किसे मालूम हुआ, समझ में आया नहीं। तो ये भी सब नाजायज चीजें हैं, इस वजह से हम लोग मौलूद को मना करते हैं। ताकि मैंने खुद पहले बताया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का तज़किरा करना, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा करना मना नहीं बल्कि बासे सवाब है।
لیکن سچی اور صحیح حقیقتیں ہو اور رسم و رواج نہ ہو تو یہ چیزیں کام آتی ہے جی. لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قیام یا مجلس میلاد صحیح ہے، بلکہ بسبب خرافات کثیرہ پر مشتمل ہونے کے بدعت ہے۔ مستدرک حاکم کی روایات کس درجے کی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ مستدرک حاکم کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ اس میں بجز صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھی صحیح نہیں، مگر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ حاکم کی مستدرک میں روایت 4 قسم کی ہے، 1/4 صحیح ہے، 1/4 حسان ہے، اور 1/4 ضعف ہے، اور 1/4 موضوعات ہے۔ راجح یہ ہے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کی جس تصحیح کو برقرار رکھا وہ صحیح ہے۔ مستدرک حاکم مع تصحیح ذہبی دائرۃ المعارف حیدرآباد سے چھپی ہے۔ 50 برس کے بعد صرف پیر دیکھ کر پہچان لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ 50 برس کے بعد صرف پاؤں دیکھ کر پہچان لیا، وہ یہ کہ 2 شخص قتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے لیے ان کے پاس ملک شام پہنچے۔ ان میں سے ایک کا بدن پورا کپڑے سے چھپا ہوا تھا، صرف پاؤں اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت وحشی سے کہا کہ مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت وحشی نے فرمایا کہ اب سے تقریباً 50 برس پہلے ایک شخص یعنی عدی بن الخیار کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ برا واقعہ تمہارے ذہن میں آ گیا تو ٹھیک ہے۔ اصل میں وحشی جو ہے یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ہے، غلام تھے یہ، اور ان کو آزاد کرنے کا دھوسہ دیا گیا، تم آزاد ہو جاؤ گے اگر امیر حمزہ کو قتل کر دو۔ سمجھنا ہے، غزوہ احد کے موقع پر یہ آدمی جو تھا وحشی جنگلی، یعنی جنگلی ہم ترجمہ کرتے ہیں، غلام تھا، کالا تھا اور بھدی شکل کا تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ کسی کا غلام تھا۔ اور ہر ایک آدمی کو اپنی آزادی پسند ہوتی ہے، انہیں پتا چلا کہ بھائی آزادی مل جائے گی تو بہت اچھا ہے، تو یہ احد کی لڑائی کے موقع پر احد کی لڑائی میں یہ بھی شریک ہوا اور پوری اندازے کے ساتھ دیکھتے رہا کہ حضرت امیر حمزہ کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ امیر حمزہ کسی کے ساتھ لڑکے ہوئے سامنے آ رہے ہیں، تو وہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ گیا، جس کی وجہ سے یہ تو امیر حمزہ کو دیکھ سکتا تھا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ نہیں سکے، اور اس کے پاس کیا خنجر کو مار کر پھینکنے کا ایسا طریقہ تھا کہ دور سے وہ خنجر کو مارتا تھا، یا وہ جانتے ہو گے نہیں کہ خنجر کو یوں ایسے پھینکا جاتا ہے تو سیدھا نہ کر لگ جاتا ہے، تو ایسی مہارت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایسا خنجر مارا کہ سیدھا وہ کیا، اور سیدھا حضرت امیر حمزہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد پھر اس کے ناک کان وغیرہ کاٹ لیے گئے، جو ساری کے ساتھ ہمارے سامنے مشہور ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد وحشی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمان بھی ہو گئے، مسلمان کافر تھے اس وقت غزوہ احد کے موقع پر، پھر بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے۔ انہوں نے اس میں بھی مسلمان ہونے میں بھی تفصیل ہے، کچھ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی تم یہ کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ آؤ، میرے سامنے نہ آؤ، تم یہ کر سکتے ہو اس وجہ سے کہ جب بھی تم میرے سامنے آؤ گے تو تمہیں دیکھ کر میرے چچا کی مجھے یاد آ جائے گی کہ اس نے میرے چچا کو مارا ہے، اور پیر جب مرید سے ناراض ہوتا ہے کسی وجہ سے تو پیر کا فیض مرید تک نہیں پہنچتا، تو اسی طریقے سے جب نبی امتی سے ناراض ہو تو نبی کے فیض اس امتی تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تمہارے بھلائی کے لیے
کہ تم آؤگے مجھے رنج ہوگا, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا, لیکن دل میں تو رنج ہوگا. دل میں رنج ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی تھا ان کو, سچی ایمان لائے تھے, سچے تھے وہ. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے بعد میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گا, کبھی نہیں آؤں گا. چھوڑ کے چلے گئے, ملک شام چلے گئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حالت کفر میں, جب میں کافر تھا, حالت کفر میں سب سے اچھے, سب سے بہترین آدمی حضرت امیر حمزہ, سید الشہداء امیر حمزہ, تو میں نے قتل کیا تھا. اب اس کی مکافات میرے ذمہ لازم اور ضروری ہے, بدلہ میرے لیے لازم اور ضروری ہے. تو اس وجہ سے اس نے پھر زمانہ اسلام میں, اب تو مسلمان ہو گئے, زمانہ اسلام میں جو نبوت کے دعوی کرنے والے تھے, ان نے حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا اور کہا کہ زمانہ جہالت میں اچھے سے اچھے آدمی کو میں نے قتل کیا تھا, اب زمانہ اسلام میں سب سے برے آدمی کو میں نے قتل کیا. سمجھنا؟ یہ تو پورا قصہ ہے. اب یہاں یہ ہے کہ یہ ملک شام میں ہے, اور اس میں آتا ہے تو واقعی میں بڑا تعجب کو ہے. ایک آدمی, دو آدمی, اس میں ایک آدمی جس نے پورا منہ بھی امامے سے ڈھانپا تھا. عرب کا جو امامہ ہوتا ہے اس میں ذرا سی آنکھ دکھتی ہے, منہ سر اس میں باندھا ہوا ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اماموں کے مسئلہ جائز ہے کہ نہیں, وہ مسئلہ آتا ہے. تو اس میں کہتا ہے کہ وہ عرب کی طرف سے باندھا ہوا ہو. تو خیر بہرحال تو بالکل منہ اس کا چھپا ہوا ہے, سامنے والے آدمی کا بدن بھی پورا چھپا ہوا ہے, کپڑے پہن رکھے ہیں, صرف پاؤں کا یہ حصہ کھلا ہوا ہے اور یہ آنکھ کھلی ہوئی. اور یہ آدمی بڑا ہے, 40-50 سال کی عمر ہوگی ابھی. تو اس نے وحشی سے پوچھا کہ حضرت مجھے دیکھا ہے کہیں, مجھے جانتے ہو؟ کیا ہے میں؟ حضرت وحشی نے فرمایا کہ اب سے تقریباً 50 برس پہلے, اب سے تقریباً 50 برس پہلے جب میں وہاں پر تھا, اس وقت میں, اب تو ملک شام میں ہے, میں وہاں پر تھا, تو ایک چھوٹا سا بچہ, نوزائید ابھی ابھی پیدا ہوا بچہ, وہ ایک آدمی اٹھا کر لایا تھا. سمجھنا ہے؟ جیسے امن کرنے کے تحریک وغیرہ کے لیے لاتے ہیں. تو اس وقت میں نے اس بچے کو دیکھا تھا. اس وقت بچے کی آنکھ کیا ہوتی ہے اور پاؤں کیا ہوتے ہیں وہ تم جانتے ہو. وہ میں نے 50 سال پہلے اس بچے کو دیکھا تھا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ آدمی وہی ہے جو میں نے 50 سال پہلے دیکھا تھا. اور پھر اس کو, ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا, اس کے لیے دودھ پلانے والی عورت کی ضرورت تھی. اس نے مرضیہ کی تلاش کے لیے, دودھ پلانے والے کی تلاش کے لیے مجھ سے کہا. اس وقت بچے کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا, میں نے صرف اس کے پیر دیکھے تھے. یہ پیر اسی بچے کے پیر معلوم ہوتے ہیں. واقعہ یہی تھا, اور یہ صاحب عبداللہ ابن عدی ابن الخیار تھے, اور ان کے ہمراہ جعفر ابن عمرو بن امیہ الزمری تھے. یہ تھا رب کا ذہن. چلو بڑا گیا. حدیث کی رعایت میں شرکت دعوت سے احتراز. ارشاد فرمایا کہ جب میں کانپور میں تھا تو وہاں کسی دعوت میں اس وقت تک شریک نہ ہوتا جب تک طلبہ اس میں شریک نہ کیے جاتے, کیونکہ حدیث میں ہے وہ کھانا شر الطعام ہے جس میں صرف اغنیاء ہو, فقراء نہ ہو. شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء. مقتدی حضرات خصوصاً ایسی دعوت کے قبول کرنے سے احتیاط رکھے جس میں فقراء کو شریک نہ کیا جائے.
जमउल फवाइद लेकिन आजकल के तो तलबा कोई फोकरा है नहीं, सारे के सारे अग्निया के भी बाप है। चलो, जमउल फवाइद 14 कुतुब हदीस का खुलासा है। यानी जमुल फवाइद नामी जो किताब है उसमें जो सारी हदीसें जमा की है वो 14 हदीसों से जमा की है। जी, बंदे के इस्तिफसार पर इरशाद फरमाया कि जमउल फवाइद बहुत अच्छी किताब है, 14 कुतुब हदीस का खुलासा है। मुख्तसरन इतना समझ लो कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी किताबें मदारिस में दे दी थी, मगर जमउल फवाइद अपने पास रखी, वो किसी को नहीं दी। जमउल फवाइद के आखिर में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीज है, उसमें ऐसा ही है। तस्वीर कशी नाजायज है। इरशाद फरमाया, आजकल तो मोबाइल की वजह से बिल्कुल आम हो गया है, मोबाइल की वजह से तस्वीरें खींचना जायज नहीं है। जी, इरशाद फरमाया कि एक साहब ने मेरी तस्वीर खींचने का इरादा किया, मुझसे इजाजत चाही, मैंने मना कर दिया और कहा कि तस्वीर कशी नाजायज है। उन्होंने कहा कि आदम जवाज बुतों के बारे में है। मैंने कहा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हुजरे पर पर्दा डाल रखा था जिसमें तस्वीर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फाड़ डाला और फरमाया कि सख्त तरीन अजाब कयामत के दिन उन लोगों को होगा जो तस्वीर बनाते हैं। वहां तो बुत नहीं रखे थे, उसके बावजूद फाड़ डाला, नाराजगी का इजहार किया। कहने लगे ये तो अक्स है जैसे पानी पर, इसमें इंसान की बनावट का दखल नहीं। मैंने कहा कि गलत है, इसमें इंसानी बनावट का दखल है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, जा गया। तस्वीर जो है ये तो अक्स है यार, अक्स की कहते हैं ना, अक्स के माने फोटो तस्वीर। तुम आईने के पास खड़े रहो तो आईने में तुम्हारा क्या आता है? तस्वीर या अक्स, अक्स समझ में आया नहीं, पूरा अक्स आता है, बाल बाल दिखता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आजकल के जो अरब हैं वो तस्वीर कशी को जायज करार दे रहे हैं और तस्वीर कशी को जायज करार देने की वजह ये बता रहे हैं कि ये तो अक्स है, तस्वीर नहीं है। तस्वीर पर जिसमें तमसील हो, पूरी क्या है वो पूरी बॉडी वगैरह बनाई गई हो, या तो इसके अलावा क्या है वो स्कूल में या खेल कूद में वो जो तुमको क्या मिलता है, मेडल, वही मॉडल मिलता है। उसमें तो पूरा आदमी की शक्ल भी होती है, नहीं अपनी ना हो लेकिन आदमी की जो शक्ल होती है, तमसील उसे कहते हैं, मिसाल उसे कहते हैं, जिसको पुतला हमारी जबान में कहते हैं। तो अरब कहते हैं पुतले की ममानियत है, अक्स की ममानियत नहीं है। लेकिन हमारे उलमा कहते हैं कि तुम्हारी समझ की गलती है, हमारी समझ की गलती है ये, इस वजह से कि अक्स में तो आदमी वहां से हट जाएगा तो वो अक्स और वो फोटो खत्म हो जाएगा। समझ में आया नहीं? अगर तुमने अभी मोबाइल खोल कर अगर ये किया तो वो तुम्हारा शक्ल आएगी तो वो अक्स होगा, लेकिन अगर तुमने बटन दबाया तो फिर वो छप जाएगा। समझ में आया नहीं? फिर उसको तुम किसी जगह पर भी उसको देख सकते हो, खोल सकते हो। इस वजह से वो तस्वीर के हुक्म में आ जाएगा, इस वजह से वो जायज नहीं है। जी, कहने लगे ये तो अक्स है जैसे पानी पर, इसमें जैसे पानी पर, अगर पानी हो, हौज में है और हौज के ऊपर जाकर देखो तो तुम्हारा मुंह उस पर नजर आएगा, तो ये मना थोड़ा है, ये तो अक्स है। समझ में आया नहीं? कांच है, कांच के ऊपर तुम खड़े हो जाओगे तुम्हारा चेहरा नजर आ जाएगा, ये मना नहीं है। हट जाओगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मोबाइल वाला जो है या ये फोटो जो है वो जब तक उसको स्केच न करो वहां तक तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सेट करोगे तो वो पूरी तस्वीर आ जाएगी उस पर। इसमें इंसान की बनावट का दखल नहीं। मैंने कहा कि गलत है, इसमें इंसानी बनावट का दखल है, इसलिए कि कैमरा खुद ब खुद तस्वीर नहीं खींचता। इब्तिदा जब तक तुम उसकी क्या है इब्तिदा में कैमरा में सारे वो चीजें तय कर लो, रख लो और फिर बटन दबाओ जब भी तस्वीर लेता है, वरना तो नहीं आती तस्वीर। जी, कैमरा खुद ब खुद तस्वीर नहीं खींचता। इब्तिदा इंसान के फेल ही से होती है, फिर सफाई भी उसके फेल ही से फिर होती उसके है। बाद उसको धोना पड़ता है, फिर तस्वीर सामने आती है। वो
क्या कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिखाई जाती है? दरियाफ्त किया गया कि मैयत से कब्र में जो सवाल होता है कि उस शख्स के बारे में क्या कहते हो कि हुजूर असल में हजरत मुफ्ती साहब से सवाल किया गया कि मैयत को, हदीस में आता है कि जब आदमी मैयत को कब्र में लिटा देता है, क्या पट्टी वगैरह सब रख दिए जाते हैं, मिट्टी डाल दी जाती है, और मिट्टी डालने के बाद जब वो हटते हैं वहां से तो उसकी करे नियाल, पाँव के जूते की आवाज कब्र में मुर्दे का सुनता है। उस वक्त दो फरिश्ते आते हैं। हम तो इसको कहते हैं कि एक का नाम मुनकर है, दूसरे का नाम नकीर है, लेकिन नाम नहीं है, बल्कि उसका माना है कि मुनकर ऐसा देखने में कि आदमी देखकर ही डर जाए, और नकीर इसका माना भी यही। बिल्कुल हमारे तस्वुर में आए ही ना, समझ में आए ही ना, ऐसी शक्ल वाले दो फरिश्ते डरावने आते हैं। अंगूठा पकड़ते हैं तो अंगूठा पकड़ने के साथ ही वो कब्र में, कब्र के उसके क्या इसके साथ, कफन के साथ बैठ जाता है, और जब बैठ गया तो सारा कफन नीचे उतर आता है, समझना है। और वो आकर सवाल पूछते हैं, मन रब्बु मन दीनो, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। और फिर मदीना मुनव्वरा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वहां तक के सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, वो तो आलम अरवा में डाले गए। और वही पूछा कि वो आदमी बैठा हुआ है वो कौन है, क्योंकि इम्तिहान है इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया जाता, समझना है। वो आदमी अगर ईमान वाला है तो उसका ईमान खुद ब खुद उसके कनेक्शन को जोड़ देगा और कहेगा कि ये हमारे रसूल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, समझना गया। और अगर गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ है, समझना। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी उसमें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिखलाई जाती है, तस्वीर नहीं, बर्दाश्त से खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए वो दिखला दिए जाते हैं, और आम है ये। जी, दरियाफ्त किया गया कि मैयत से कब्र में जो सवाल होता है कि उस शख्स के बारे में क्या कहते हो, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिखाकर पूछा जाता है या कुछ और? इरशाद फरमाया कि हदीस में इसकी तस्रीह नहीं कि तस्वीर दिखाई जाती है या हिजाबात उठाकर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस दिखाया जाता है। यानी हदीस में तो है नहीं, लेकिन ये जो तस्वीर की जायज करने वाले नए मौलाना साहब ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिखलाई जाती है, तो तस्वीर पढ़वाते होंगे, तस्वीर जायज होगी जब भी तो दिखलाए होते हैं, वो ये कह रहे हैं। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि हदीस में तो है नहीं, हदीस में तो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया जाता है। जी, शैतान अल्लाह की सूरत बना सकता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं बना सकता, क्या वजह है? इसलिए कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा हिदायत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज में, किसी बात में कोई गुमराही नहीं है, और शैतान बिल्कुल उसका अक्स है, सरापा गुमराह है, उसकी भलाई में भी गुमराही जरूर होगी, समझना गया। इस वजह से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल पे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा हिदायत है, बना नहीं सकता। अल्लाह की शक्ल में आ सकता है कि वो ख्वाब में आकर कह सकता है कि मैं अल्लाह हूँ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह हादी और मुदिल दोनों है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बात में कह सकता है ख्वाब में आकर मैं अल्लाह बोल रहा हूँ। अगर बड़े पीर साहब, अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को शैतान ने धोखा देने की कोशिश की, ये तो सबको धोखा देता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने की कोशिश की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ा था फिर छोड़ दिया, याद है कि नहीं हदीस में? तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा तो मेरा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमको माफ करेगा वो, समझ में। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो क्या बता रहा था, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जमाने के बड़े पीर साहब हैं,
اور आजकल भी सब उनको पीर मानते और हैं, वाकई में पीर है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन उनको भी शैतान ने गुमराह किया। और ये शैतान गुमराह करने में न छोटे को देखता है न बड़े को देखता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं मुराक़ करने में था तो दिखा मुराक़बे में नूर फैल गया, सब नूर फैल गया, और नूर में से आवाज आया, मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, ये अब्दुल कादिर मैं तुमसे खुश हो गया, मैं तुमसे खुश हो गया, और खुशी के वजह से जो चीज शरीयत में नाजायज है वो भी तुम्हारे लिए हलाल कर दी। आजकल के पीर साहबान होते हैं तो वाह 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 वाह, क्या कहने, समझ में आ गया। हजरत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ये मेरे कान में मेरे जुमला पड़ा तो मैं समझ गया कि ये अल्लाह की आवाज नहीं, ये शैतान की आवाज है। इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों ने तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी चीजें नाजिल करनी थी सारी नाजिल कर दी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, तो कह दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, अब वो हुक्म तो बदल सकते ही नहीं। जब बदल नहीं सकते तो ये कौन है बदलने वाला? मालूम हुआ ये शैतान है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कल के